नमस्कार। क्योंकि ये बेजुबान है, जी हाँ, आज इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्टूडियो में मैं हूँ रश्मि भैया शर्मा। आज हम यहाँ बात करेंगे इंसान के सबसे वफादार दोस्तों की, यानी इंसानों के साथ घरों में ही रहने वाले पेट्स की। सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है। इस मौसम में जिस तरह से आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपके पेट्स को भी अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। जानवर इंसान के सबसे पुराने दोस्त है। दुनिया भर में लोगों को जानवर पालने का शौक होता है। जानवर वफादार और एक अच्छा साथी होता है और हमें तनाव मुक्त भी रखता है। ऐसे में इन पालतू जानवरों की देखभाल करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोग घर में पेट्स रखने के शौकीन होते हैं, मगर पेट्स पालने का एक्सपीरियंस नहीं होने के चलते लोग अक्सर उनकी देखभाल को लेकर परेशान होते हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं पेट्स पालने के कुछ आसान टिप्स, जिन्हें फॉलो कर आप घर के पालतू जानवरों को की बेस्ट केयर कर सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए वेटरनरी साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जोदुमणि कछारी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। घर में एक प्यारा सा डॉगी या बिल्ली पालने की इच्छा कई लोग रखते हैं, लेकिन जब उनके सिलेक्शन की बात आती है तो दुविधा में पड़ जाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने पेट्स का सिलेक्शन हमें किस आधार पर करना चाहिए। बात करें डॉगी की, तो सबसे सुरक्षित नस्ल कौन सी है और सबसे खतरनाक कौन सी है? Yeah, pet animals, especially dogs and cats, are like a family member nowadays. They are one of the member in our family. Since time immemorial, they have served us a lot. Now, if you ask me what type of breed do you like to choose, if you are choosing for a very friendly dog, which is playful enough in your family, or which will be very playful with your small children or any member of the family, I would like to suggest you, or I would like to recommend you to go for a Labrador or even a Golden Retriever. Now, if you are looking for a guarding purpose, I would like to suggest you to go for German Shepherd, which is also known as Alsatian, as well as you can go for Doberman, which are very good guarding dogs. Even Belgian Shepherd, which are very intelligent nowadays, they are being used as guarding dogs. Even Rottweilers are even used as guarding dogs. Now, again, if you ask me if you want to keep a very small dog, a toy size breed dog, you can go for a German Spitz suiting to our agroclimatic conditions. Even you can go for a Beagle, a Cocker Spaniel, as well as you can go for small miniature breeds also. They are very easily manageable, but breeds like German Spitz and Cocker Spaniel needs little managemental care because of their long hairy coat, which for them you need to have separate managemental, like daily combing and grooming of the dog is very essential. So, and of course I would like to suggest to all the owners that never to neglect our indie breeds or local breeds. They are very good companions, they are very good learners as well. They will give you a very good company in your home. So I would like to request you or appeal you, please do adopt a local breed also. Now, not only that it's a breed to be adopted, it's a very good indie breeds can also be adopted for a very providing a good friend to your family. जी बिल्कुल डॉक्टर, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में अपने पेट्स के रहने के लिए हमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिए? किस तरह का आवास प्रबंधन जरूरी है, खास तौर से जब ठंड का मौसम है? Yes, our pets do require special attention during cold weather or winter season. Definitely, like as human beings, as we feel cold during the winter season, definitely our pets do feel that cold during the winter season similarly. So the pets can be provided bedding material always. You can give the warm clothes, even blankets can be provided to them, or you can give them ready-made jackets which are nowadays available in the market. You can they are available in different sizes in the markets. You can procure them and let the pets wear them on. You can even provide a heater. A heater in your room is very essential, especially for pups. Even you can light up a high energy bulb like 100 watt or a 200 watt bulb near your pups, so that they can get warm during the winter season. And also I recommend to give them a lukewarm water in their feeding during that winter season also. आहार प्रबंधन की बात करते हैं। पेट्स के लिए डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? अपने डॉगी को हम कैसा आहार दें और बिल्ली के लिए कैसा डाइट होना चाहिए? उन्हें सोशलाइज कैसे करें? Yeah, regarding the diet plan, actually dogs and cats both are carnivorous animals.
Yes, they should be provided with animal protein supplement always, especially for cats. Dogs, sometimes owners ask or people ask whether they can be maintained in a vegetable diet or not. As a veterinarian, I would like to suggest that a vegetable diet is not a good, not only the source of the diet for your pet like dogs. They should be definitely be provided with animal protein. If you are, yes, vegetable source is also necessary, like carbohydrate is necessary. Vegetables like you can choose pumpkin. It's a very good vegetable that can be given to your dogs. You can choose carrot. Carrot is also a good vegetable that can be given to your dogs. Even you can go for broccoli, squash. A mixture of those vegetables can be administered or orally fed to your dogs. That will supplement a very good source of carbohydrate as well as a fiber. But in cats, fiber diet is generally not recommended because cats have very short digestive system and their digestive system does not have the capacity to absorb the fiber diet. So it is grain-free diet should be provided to the cats. The cat diet should be animal protein-rich food, and especially in cats, lactose should also be avoided. Like cow milk should be avoided because they have very poor digestive system for the cow's milk, and it may suffer from indigestion, or they may suffer from diarrhea if you feed cow's milk to cat, because the owners have a tendency to feed milk to the cat. But as a veterinarian, I would like to suggest that cow's milk should be avoided in a cat. And even though if you are feeding milk to your cat, definitely it should be in a very diluted ratio. You can dilute it in the ratio of 1:10. Regarding socializing your pet animals, yes, socializing is very essential. Your pet should never be chained. It should never be kept chained always for 24 hours. They should be let loose and play around in your home. A playground is very essential for dogs. A regular walk, a regular exercise is also very necessary for a dog to be socialized. Treating them with special treats sometimes is also necessary. If suppose you are training your dog, and if your dog is doing good in your training, then yes, you can give a shabashi to your dog that yes, you are doing good. In that way, you can come close to your pet. Introduction of your family members, friends are also necessary so that your dog can recognize the temperament. To know the temperament of the dog, again, the behavior is very essential. Suppose like if the dog is wagging its tail, then definitely the dog is accepting you. Suppose the dog is keeping its tail or bringing its tail behind the abdomen, or it's putting it down, then you should be assured that the dog is afraid of you or threatened enough. So you should be careful of those. And especially for cats, again, you can put around some scratching posts in your house. Toys are also very essential. Then you can put some fences, climbing fences, so that your cats can play or climb around the fence and can spend their time in that in your house that you are keeping in them. Definitely acclimatizing with their litter box is also very essential, because cats are very clean animals, and they generally choose a particular area for their defecation and urination. So it is suggested that a litter box should be always be provided to your cats. डॉक्टर, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो घर पर लाया गया पेट किसी के लिए खतरा साबित ना हो, इसके लिए उसके वैक्सीनेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप हमें ये बताइए कि वैक्सीनेशन कब कब करानी है और उस दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? उसमें या कैट्स में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल का बारे में पूछा जाए तो आप पहला टिक्का जो है आप 35 डे में शुरू कर सकते हैं डॉग के लिए, जो पार्वोवायरल इन्फेक्शन और डिस्टेम्पर के लिए होता है। फिर आप 60 डे में आपका जो कंबाइन वैक्सीन मिलता है, जो 5 डिजीज़ कवर करता है। एक होता है पार्वोवायरस, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा और लेप्टोस्पायरोसिस। इनका आप टिक्का लगा सकते हो 60 डे में।
फिर 30 डे में उनका फिर 90 डे में आपका फिर उसका बूस्टर लगाना है, और 90 डे में आपको इनके साथ रेबीज़ का वैक्सीन भी कराना है, जो एक जूनोटिक डिजीज़ जैसा मानता है। सो रेबीज़ कंट्रोल के लिए रेबीज़ वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैट का बारे में पूछते हैं तो कैट का वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। 4 हफ्ता में आपका पहला वैक्सीनेशन लगना चाहिए, जो 3 बीमारियों का कंट्रोल करता है, कैल्सी वायरस, राइनोट्रैकाइटिस और फेलाइन पैनलिकोपेनिया जैसा वायरस का जो कंट्रोल रहता है वो आपका ये ट्रायो वैक्सीन से जो मिलता है वो आपको 4 वीक्स में लगाना है। फिर उसका बूस्टर आपको फिर 8 वीक्स में आपका बूस्टर कराना है। फिर 3 मंथ्स में, जैसे कि डॉग्स में रेबीज़ दिया जाता है, इधर कैट्स में भी आपका 3 मंथ्स में रेबीज़ का डोज देना ज़रूरी होता है। जी, ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार लोग देसी नस्ल के डॉगी घर ले आते हैं। क्या उनका आहार अन्य नस्लों के मुकाबले अलग होना चाहिए? उनको किस तरह की देखभाल की ज़रूरत है? क्योंकि जानकारी के अभाव में ऐसे डॉगी अक्सर मौत के मुंह में चले जाते हैं। कई बार लोग देसी ब्रीड को घर लाते हैं। उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ, देसी ब्रीड को जो एक्सेप्ट कर रहा है ये सोसाइटी में। देसी ब्रीड बहुत इंटेलिजेंट डॉग होते हैं। जो देसी ब्रीड को अडॉप्ट कर रहा है उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ। देसी ब्रीड बोल के ऐसा नहीं है कि आप देसी ब्रीड को ऐसे ही छोड़ देंगे। देसी ब्रीड और अलग ब्रीड डॉग, उनमें से कोई उनका डिफरेंस नहीं रहता है। जो एक ब्रीड डॉग को चाहिए वही सेम चीज़ें आपका देसी ब्रीड को भी चाहिए। जो केयर एंड मैनेजमेंट एक ब्रीड डॉग के लिए चाहिए, सेम केयर एंड मैनेजमेंट आपका देसी ब्रीड में भी चाहिए। जैसे कि हो वैक्सीनेशन उनका भी होना चाहिए, डीवर्मिंग उनका भी होना चाहिए, डाइट जो मेंटेन करना है सिमिलर डाइट आप देसी ब्रीड में भी वही डाइट फॉलो करना है। अगर आप अभी डाइट का बारे में बोलेंगे तो देसी ब्रीड या ब्रीड डॉग्स, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एनिमल प्रोटीन सोर्स जो होता है वो ज़रूरी होता है। स्पेशली कैट्स में एक एमाइनो एसिड टोरिन वो बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना है, जैसे कि डाइट में आपका चॉकलेट अवॉइड करना है, आलमंड्स अवॉइड करना है, फ्रूट्स में से ग्रेप्स बिल्कुल मना है डॉग्स एंड कैट्स में। सो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है। इवन केबेज इज़ ऑल्सो नॉट गुड, केबेज भी आपको अवॉइड करना है। सो ये सब चीज़ें आपको आपका डॉग का स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। सो जो आपको यही बताना चाहूँगा कि देसी ब्रीड और ब्रीड्स में कोई फ़र्क नहीं होता है। जो ब्रीड के लिए चाहिए वो देसी ब्रीड के लिए भी चाहिए। डॉक्टर, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं पेट्स केयर की। डॉक्टर जदुमणि कछारी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, आमतौर पर किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पेट्स में देखी जाती है और हम कैसे पहचाने कि वे बीमार हैं? कैसे लक्षणों पर गौर करना ज़रूरी है? अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाए तो जनरली फीवर बहुत कॉमन होता है, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, वो सब कॉमन प्रॉब्लम्स है डॉग्स एंड कैट्स में। जो हम लोग का डाइट जिसमें आपका नमक और मसाला ज़्यादा रहता है वो डाइट देने से अगर डॉग या कैट को इंडाइजेशन या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। तो वो सब कॉमन बीमारियां हैं। ऊपर से आप लोगों को आपको जैसे बताया टिक्का जो लगाना होता है वैक्सीनेशन में, पार्वोवायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा, वो सब बीमारियां हैं जो कॉमनली अफेक्ट करता है हम लोग को डॉग्स को। कैट्स में जनरली आपका पैनलिकोपेनिया वायरस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जिसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए थ्रू वैक्सीनेशन के ज़रिए से। आप अगर कैनाइन में पूछेंगे, डॉग्स में पूछेंगे तो डिस्टेम्पर जैसा डिजीज़ बहुत मुश्किल है ट्रीट करने के लिए। उन लोगों का सिर्फ एक ही मेजरमेंट है ये डॉग को बचाने के लिए,
टिक्का लगाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन का बहुत ज़रूरी है डॉग्स में वो बीमार से बचने के लिए। रेबीज जैसा डिजीज़ जो जूनोटिक डिजीज़ माना जाता है, जो एनिमल से मैन तक पहुंचता है, वो डिजीज़ को भी फिर कंट्रोल करने के लिए उनका रेबीज़ का भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन का ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे आप रेबीज़ को बचा सकते हैं। जी, डीसेक्सिंग के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, किस उम्र में ये प्रक्रिया की जा सकती है और क्या डीसेक्सिंग के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां सामने आ सकती है और वे कितनी गंभीर होती है? डीसेक्सिंग जो हिंदी में नाजबंदी हम लोग बोलते हैं, मेल एनिमल्स के लिए जो करा जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर नसबंदी कराएंगे मेल एनिमल में तो महत्वपूर्ण बीमारियों से आप बच सकते हैं, लाइक टेस्टिकुलर ट्यूमर से आप बच सकते हैं, पेरिनियल हार्निया से भी आप बच सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर जैसे से बच सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए नसबंदी जो कराते हैं वो ज़रूरी है। ऊपर से अगर नसबंदी का आप हमको एडवांटेज पूछेंगे तो फिर नसबंदी करने से एनिमल को डोसाइल बना दिया जाता है। फेरोशियस एनिमल जो रहता है वो लोग डोसाइल बन जाता है, शांत हो जाता है। एक डिसएडवांटेज आ सकता है नसबंदी में जो है ओबेसिटी का, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू से। सो एज ए वैट हम ज़रूर नसबंदी को रिकमेंड करेंगे। फीमेल में भी आप अगर आप स्टेरिलाइज करना चाहते हो फीमेल को, तो फीमेल भी बहुत इम्पोर्टेंट बीमारियों से जैसे कि पायोमेट्रा, यूटेराइन कैंसर, ओवरियन कैंसर, उन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। सो बोथ फीमेल और मेल एनिमल का स्टेरिलाइजेशन ज़रूरी होता है। डॉग्स और कैट्स का नसबंदी जो है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी कराया जाता है। जनरली हम लोग 1 या 2 साल, 2 साल नहीं, 1 साल पकड़ता है कैट्स और डॉग्स के लिए। लेकिन आजकल अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ा अर्ली एज में भी आ जाता है। 6 to 7 मंथ्स में आजकल सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है। तो पहले हीट के बाद हम लोग रिकमेंड कराता है कि आपका एनिमल को नसबंदी करा दीजिए। जी डॉक्टर, अपने पेट्स को अपने साथ कहीं घुमाने ले जाने का हम प्लान बनाते हैं तो वहाँ कौन कौन सी तैयारी हमें रखनी है और वहाँ किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? You are planning to take your pet for a ride or going somewhere for a long journey. आप अगर आपके पेट को कहीं घुमाने लेके जा रहा है तो पेट स्पेशली कैट्स में एक कैरियर लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे ही ओपन लेके नहीं जाना है। कैट्स do gets frightened sometimes when they are taken out. कैट्स को जब आप बाहर लेके जाते हो वो डर जाते हैं। तो इसीलिए कैट्स को आप अगर ट्रैवल कराना चाहते हैं तो आपको एक कैरियर में लेके जाना ज़रूरी होता है। डॉग्स को भी आप जब ट्रैवल कराते हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि उनका खाना पीना आपको टाइमली देना है। गाड़ी को आप जगह जगह रुका सकते हो उन खाना और पीने के लिए। उनको बाहर का एनवायरनमेंट में थोड़ा लाना पड़ता है। गाड़ी के अंदर ही आपको नहीं रखना है। आपको ये भी एज्यूम करना है कि गाड़ी का खिड़की हमेशा खुला रखना है। अगर आप खिड़की बंद भी कर रहे हो तो एसी ज़रूर ऑन होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें ज़रूरी है। जनरली डॉग्स जनरली इनडाइजेशन और वोमिशन के लिए बहुत जल्दी उन लोगों को इफ़ेक्ट होता है। तो उन सब बीमारियों को आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक एंटी डायरियल, एक एंटी वोमिशन, वो सब दवा आप साथ में लेके जा सकते हो। ताकि आप अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो सब दवा से आप दे सकते हो ओरली। आप ट्रैवल करने का पहले किसी भी वैट को आप पूछ के क्या क्या दवा ज़रूरी है वो पूछ के आप लेके जा सकते हैं। जो फेरोशियस एनिमल होता है जनरली उन लोगों के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग या स्लीपिंग जो सॉल्यूशंस या स्लीपिंग ड्रग्स होता है, थोड़ा सा वो सीडेटिव जो हम लोग बोलते हैं, वो सीडेटिव देके भी आप उन लोगों को लेके जा सकते हो।
जिन पेट्स को हम इतने प्यार से घर ले आते हैं, अक्सर देखा जाता है कि अपना शौक पूरा होने के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। ऐसे में पशुपालन विभाग की क्या जिम्मेदारी होती है और किस तरह से विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाता है? क्या उनके लिए किसी आश्रय की व्यवस्था की जाती है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, आप घर में कोई पेट को लेके आए, पपीज़ में पेट बहुत क्यूट रहता है, घर में ज़्यादा अटेंशन मिलता है पपीज़ का जब पपी रहते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑनर्स भी बिज़ी हो जाते हैं उनका काम में, पेट्स को इतना अटेंशन दे नहीं पाते हो। तब आजकल उन सभियों के लिए सुविधा है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, गवर्नमेंट जो है BMC का थ्रू से और डिफरेंट सोशल मीडिया का साइट से आपका जो एडॉप्शन सेंटर है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, वो लोग आपको शेल्टर दे सकते हैं। उन लोग से आप कांटेक्ट करके एडॉप्शन के लिए अपील कर सकते हो। इवन आप एडॉप्शन के लिए सोशल साइट में भी अपील कर सकते हो। ये सब सुविधा दिया जा रहा है आजकल। डिफरेंट NGOs है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सो आप अगर आपका पेट को ध्यान नहीं दे पा रहे लेने के बाद, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कैन आस्क फॉर एन एडॉप्शन टू एनी ऑफ द NGOs। कोई भी NGO या एडॉप्शन सेंटर को आप अपील कर सकते हो। जी बेशक डॉक्टर, पिछले कुछ दिनों में हमने कई राज्यों में कुत्तों को आक्रामक रूप में देखा है, जिन्हें हम अपना वफादार कहते हैं, वही कई बार जानलेवा साबित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हाँ, कोई डॉग्स कभी कभी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। एग्रेसिवनेस जो है वो एक्चुअली रियरिंग बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आप वो एनिमल को हमेशा 24 आवर्स के लिए आप चेन करके रख रहा है, उसको ओपन नहीं रख रहा है, आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो एनिमल ज़्यादा एग्रेसिव बन जाता है। तो इसलिए आपका जो एग्रेसिवनेस को रुकाना है, तो सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइज करना ज़रूरी होता है। और एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए जैसे कि सर्जरी होता है, जो नसबंदियाँ हम लोग बोलते हैं, वो करा सकता है। वो सर्जरी करने से एनिमल काम हो जाता है, डोसाइल हो जाता है। ज़्यादातर वो एग्रेसिवनेस जो दिखाता है बिफोर सर्जरी, उससे बहुत गुण कम हो जाता है आफ्टर सर्जरी। सो स्टेरिलाइजेशन जो हम लोग बोलते हैं, नसबंदी या स्टेरिलाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी है एग्रेसिवनेस को ये करने के लिए। और आपको ब्रीड चूजिंग का टाइम में भी आपको देखना है। अगर आपको एग्रेसिव एनिमल नहीं चाहिए, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट हम लोग को ब्रीड जैसा रोटवीलर, डोबरमैन, जर्मन शेपर्ड, जनरली वो सब ब्रीड अवॉइड करना है अगर आपको एक फ्रेंडली डॉग चाहिए और एग्रेसिव डॉग नहीं चाहिए। डॉक्टर, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके पेट से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी आप तक इस खास कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। आज की इस खास चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी को भी धन्यवाद।